Today, in the subject of the human resource management, OEC3, we will discuss about the career planning and development. Career planning and development. So, in the unit 3rd of the human resource management, the syllabus is the human resource development, training process, training need analysis, training methods and technique, designing training program and delivery methodology, training evaluation, capacity building, career planning and development, potential appraisal and succession planning. Hence, we will go for the career planning and the development. And in this, the meaning of the career planning and the manpower planning, career planning and the succession planning, career planning terminology, objectives of the career. अटेंडेंस लगा दो। हाँ, अभी तो 3 स्टूडेंट आए हैं, मैं लगा देता हूँ, अटेंडेंस लगा देता हूँ। अतुल दीक्षित जी आए हैं, फैजान जी आए हैं और मिस्टर योगेश जी आए हैं। सर लगा दी? हाँ, लगा रहे, अटेंडेंस लगा रहे। 167 सर। 167 है, लग गई। वाला और फैजान जी का 111 लग गया। फैजान जी लग गया। और अतुल जी 106। इसकी पीडीएफ भेज दी सर इस टॉपिक की आपने? हाँ भेज दिया। हाँ अभी भेजिए भाई। अभी भेज दिए। अभी भेज दिए वो। सर ये फैजान जी ने देखते नहीं है सर, ये ऐसे ही मांगने लग जाते हैं, पहले देखा करो फैजान। तो कैरियर प्लानिंग टर्मिनोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैरियर प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ द कैरियर प्लानिंग, कैरियर काउंसलिंग, advantages of the career planning, limitations of the career planning, making career planning successful, and career development. These are the topics that to be get covered. सर कितना सिलेबस रह गया? और एक यूनिट रह गया है, एक यूनिट और रह गया है। यूनिट 2 तो अभी तो टाइम भी है। क्लासेस कब तक चलेगी? पता नहीं सर। हाँ वही, अभी तो टाइम भी है। एक यूनिट रह रहा है अभी, जो है आपका यूनिट 2 रह रहा है। A career is a sequence of separate but related work activities that provide continuity and order meaning of the person's life. A career का मतलब है एक sequence of the positions or job held by person during the course of his working life. इसी का मतलब होता है career, है ना? A person's career is shaped by the many factors. हेरिडिटी से आपको आता है, पेरेंट से आता है, कल्चर से आता है, एज लेवल से आता है, जॉब एक्सपीरियंस से आता है। ये सारे आपको कैरियर है। और कैरियर प्लानिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस बाय विच वन सेलेक्ट्स कैरियर गोल्स एंड द पाथ टू दीज गोल्स, है ना? कैरियर प्लानिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस by which one selects career goal and the path to these goals. Career planning is the process of matching career goals and individual capability with opportunity for their fulfillment. ये आपको career planning है ना? तो the main characteristics of the career planning. Career planning is a process of developing human resources rather than an event. It is a process of developing the human resources. It is not an end in itself, but a means of managing people to obtain optimum results. Career planning is a continuous process due to an ever-changing environment. Career planning is a continuous process due to an ever-changing environment. Basically, career planning is an individual responsibility
but it is the responsibility of an organization to provide guidance and counseling to its employee in planning their careers and in developing and utilizing their knowledge and skills. Goals of the employees should be integrated with the organizational goals. Goals of the any of the employee जो होगा वो organization goal जो होगा उसी पे आपको fit होगा. The basic aim of the career planning is integration of individual and organizational need. जो इंडिविजुअल नीड है वो क्या है उसको समझना है, ऑर्गेनाइजेशनल नीड क्या है वो आपको समझना है. दोनों का इंटीग्रेशन करके ही आपको कैरियर प्लानिंग का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैरियर प्लानिंग का, है ना. कैरियर प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैचिंग कैरियर गोल्स एंड इंडिविजुअल कैपेबिलिटी विथ अपॉर्चुनिटी ऑफ देयर फुलफिलमेंट. Career planning and the main power planning. Career planning is an integral part of the main power planning, which in turn is an important part of a corporate planning. Main power planning cannot be effective without proper career planning. Similarly, main power planning provides valuable information to facilitate career planning. First, main power planning provides an inventory of skills and potential available within an organization. On the other hand, career planning determines who could be groomed for higher level of assignment. कैरियर प्लानिंग से आपको ये डिसाइड होता है. दूसरा, सेकेंडली, मेन पावर प्लानिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ह्यूमन रिसोर्सेस अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. मेन पावर प्लानिंग में आपको ह्यूमन रिसोर्सेस जो आपको अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में उसके बारे में बताता है, उसका एक्सपेंशन के बारे में बताता है, उसका ग्रोथ के बारे में बताता है, उनकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में बताता है. ये आपका मेन पावर प्लानिंग है. मेन पावर के बारे में आपको बताता है. कैरियर आपको प्लानिंग जो है वो किसको हायर लेवल ऑफ असाइनमेंट दिया जाए उसके बारे में आपको बताता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कैरियर प्लानिंग एंड द मेन पावर प्लानिंग, है ना. तो कैरियर प्लानिंग और मेन पावर प्लानिंग में आपको यही आपको डिफरेंस है कैरियर प्लानिंग में और मेन पावर प्लानिंग में. कैरियर प्लानिंग एंड द सक्सेशन प्लानिंग. Succession planning is the process of ensuring that qualified persons are available to assume key managerial positions where these fall vacant due to untimely deaths, permanent fringing, resignation and retirement. Succession planning क्या है? It is the process of ensuring that the qualified persons are available to assume key managerial position. कोई key managerial position को acquire करता है जो कि वैकेंट हुआ है ड्यू टू द अनटाइमली डेथ ऑफ एनी पर्सन, प्रीमेच्योर फायरिंग के वजह से, रिजाइनेशन की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से कोई जॉब खाली हुआ है तो उसको फिलअप करने के लिए जो प्रोसेस लगता है उसको सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं. द एम ऑफ द सक्सेशन प्लानिंग इज टू इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन एंड द ऑपरेटिंग इफिशिएंसी. स्मूथ ट्रांजिशन और ऑपरेटिंग इफिशिएंसी को, प्लांट का ऑपरेटिंग इफिशिएंसी को बरकरार रहने के लिए ये जो है किया जाता है. स्टडीज रिवील दैट द एग्जीक्यूटिव हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड आर मोर एक्सपेंसिव देन चूजन फ्रॉम द सक्सेशन प्लानिंग. जो आप जो सक्सेशन प्लानिंग से जो इंटरनल पर्सन्स हैं कंपनी के अंदर, उसके सक्सेशन प्लानिंग के द्वारा जो है कोई आदमी को आपने बना दिया तो वो आपको सस्ता पड़ता है. और अगर आउटसोर्स करेंगे, आउटसाइड से लाएंगे तो आपको जो है ज्यादा हायर करके आपको देना पड़ेगा. तो एक सक्सेशन ऑफ पर्सन्स टू फिल की पोजीशन ओवर टाइम इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो the purpose of the succession planning is to identify and develop people to replace current incumbents in key position areas of resignation, retirement, promotion, growth, expansion and creation of new position. तो succession planning का जो रोल है वो आपको रिजाइनेशन के बाद आता है, रिटायरमेंट के बाद आता है
प्रमोशंस के बाद आता है, ग्रोथ के बाद आता है, एक्सपेंशन के बाद आता है, क्रिएशन ऑफ न्यू पोजीशन के बाद आता है ना। तो सक्सेशन कैन बी फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सक्सेशन जो है कंपनी के अंदर से भी हो सकता है और बाहर से भी हो सकता है। कंपनी के अंदर का किसी आदमी को किसी पोजीशन में ला दिया, या फिर बाहर का आदमी को किसी पोजीशन में ला दिया, तो सक्सेशन बाय पीपल फ्रॉम विद इन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय फॉर प्रोग्रेस इन देयर कैरियर्स। In some professionally managed corporations, every key executive is usually asked to identify 3 or 4 best juniors who could replace him in his job. Complete dependence on internal sources may, however, cause stagnation in the organization. Similarly, complete dependence on outside talent may cause stagnation. अगर आप आउटसाइड पर्सन पे आप जो है कंप्लीट डिपेंडेंस हो जाता है तो वो स्टेग्नेशन को लाता है ना। तो इसीलिए सक्सेशन प्लानिंग जो है वो आपको बेटर है देन द आउटसाइड सोर्सिंग ऑफ द पीपल। आउटसाइड सोर्सिंग को पीपल को बाहर से आप करेंगे, उससे बढ़िया है कि आप जो है कोई जॉब खाली हुआ है, रिजाइनेशन से हुआ है, रिटायरमेंट से हुआ है, प्रमोशन से हुआ है, ग्रोथ से हुआ है, तो उसको जो है सक्सेशन प्लानिंग के द्वारा आप उसको भर लीजिए। कैरियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग आर सिमिलर। कैरियर प्लानिंग कवर्स ऑल लेवल्स ऑफ द एम्प्लॉय वेयर सक्सेशन प्लानिंग इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर अ हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी। कैरियर प्लानिंग जो है आपको सभी लेवल का एम्प्लॉय के लिए वो आपको लागू होता है, जबकि सक्सेशन प्लानिंग आपको जनरली हायर लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव का लेवल है उसी में ज्यादा जो है आपको लगता है किसी कारण उसका डेथ हो गया, किसी कारण रिटायरमेंट पे चला गया, तो वहां पर आपको सक्सेशन प्लान के द्वारा उसको भरा जाता है ना। सक्सेशन प्लान इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज दैट आर लाइकली टू अकर इन हायर लेवल्स एंड लोकेटिंग द प्रोबेबल सक्सेसर। Succession planning motivates employee and facilitates continuity of the organization. Career planning may consist of the charts showing the career paths. ये आपको career paths आपको दिखाया गया है। career path सभी का आपको यहाँ पर दिखाया गया है, बहुत सारे लेवल का आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है career path of the various types of the jobs. Unskilled लेवल है तो सेमी स्किल्ड बनेगा, फिर स्किल्ड बनेगा, फिर हाईली स्किल्ड बनेगा, फिर उसके बाद फॉरमैन बनेगा। वो फॉरमैन तक जा सकता है वर्कर, है ना। अनस्किल्ड वर्कर सेमी स्किल्ड बनेगा, स्किल्ड बनेगा, हाईली स्किल्ड बनेगा, फिर फॉरमैन बनेगा। जूनियर क्लर्क सीनियर क्लर्क बनेगा, असिस्टेंट क्लर्क बनेगा, सेक्शन ऑफिसर बनेगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनेगा। सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर बनेगा, डिप्टी मैनेजर बनेगा, मैनेजर बनेगा, जनरल मैनेजर बनेगा। ये आपको कंपनी का पूरा वो दे रखा है कि कंपनी में जैसे होता है कि पहले कोई सुपरवाइजर बनता है, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर बन जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर डिप्टी मैनेजर बनेगा, डिप्टी मैनेजर मैनेजर बनेगा और वो फिर जनरल मैनेजर बन जाएगा, है ना। तो सिमिलरली लेक्चरर से सीनियर लेक्चरर बनेगा, सीनियर लेक्चरर से रीडर बनेगा, रीडर से प्रोफेसर बनेगा, उसके बाद हेड बनेगा और डीन बनेगा, फिर प्रो वाइस चांसलर बनेगा, फिर वाइस चांसलर बनेगा। ये आपको दे रखा हुआ है सारा, आपको कैरियर पाथ जो है आपको दे रखा है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर कैरियर पाथ लीनियर, एक्सपर्ट, स्पाइरल एंड ट्रांजिस्ट्री, ये आपको दे रखा है। 4 कैरियर पाथ को अगर लीनियर है तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किधर होगा, है ना। लीनियर में अपवर्ड होगा और एक्सपर्ट में लिटिल मूवमेंट होगा और स्पाइरल में लेटरल होगा एंड ट्रांजिस्ट्री में लेटरल होगा। ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन वन फील्ड लीनियर में वेरिएबल है, एक्सपर्ट में आपको लाइफ टाइम है, स्पाइरल में 7 to 10 years है और ट्रांजिस्ट्री में 3 to 5 years है। इंक्रीमेंट मोटिव्स पावर अचीवमेंट है, एक्सपर्टाइज सिक्योरिटी है, पर्सनल ग्रोथ है एंड वेराइटी है, वेराइटी डिपेंडेंस है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर
ये टाल पिरामिड है। लीनियर में आपको पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, पिरामिड स्ट्रक्चर में नीचे आपको कम ज्यादा लेवल होते हैं और ऊपर में आपको पिरामिड स्ट्रक्चर में आपको धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाता है। एक्सपर्ट में आपको फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, स्पाइरल में आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है और ट्रांजिस्टी में लूज और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है ना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक्सपर्ट में स्ट्रॉन्ग फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है, स्पाइरल में सेल्फ डायरेक्टर इंटरडिसिप्लिनरी टीम होता है और ट्रांजिस्टी में टेम्पोररी टीम होता है। तो मनोज सर अभी कौन सा यूनिट पढ़ा रहे हो आप? अभी कौन सा यूनिट पढ़ा रहे हो आप? यूनिट थर्ड चल रहा है। यूनिट थर्ड चल रहा है। मैंने शुरू में एक्सप्लेन तो कर दिया था, आप लग रहा नहीं आए। कौन बोल रहे हैं? फैजान बोल रहा हूँ सर, फैजान। हाँ, आप नहीं आए थे ना, मैं तो एक्सप्लेन कर दिया शुरू में कि यूनिट थर्ड का भी सिलेबस मैंने बता दिया था शुरू में। यूनिट थर्ड का कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रह रहा है, पोटेंशियल एनालाइजर रह रहा है, सक्सेशन प्लानिंग रह रहा है। उसके बाद यूनिट 2 आपका रह जाएगा, उसके बाद सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, है ना। यूनिट 2 आपका फिर एक यूनिट आप बोल रहे थे, एक यूनिट रह रही है, वो कौन सी रह रही है? यूनिट 2 अभी स्टार्ट नहीं किया आपने? नहीं, यूनिट 2 अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने। यूनिट 2 स्टार्ट नहीं किया है। मुझे सर एक टॉपिक नहीं मिल रहा था, नहीं दिख रही सर। कौन सा टॉपिक नहीं मिल रहा है आपको? ये एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो वो तो मैंने बता दिया, कॉर्पोरेट सोशल बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का मैंने लेक्चर तो लिया है आपको। लेक्चर नोट्स तो मैंने दिया हुआ है। पीडीएफ भेजी आपने सर? हाँ, ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है। हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नोट्स भेजते हो ना सर, वो टॉपिक वाइज आते हैं ना सर, तो वो इधर उधर हो जाते हैं टॉपिक, मतलब ढूंढना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। अगर यूनिट वाइज नोट्स आते हैं ना सर, थोड़ा इजी रहता है। नहीं तो यूनिट वाइज ही तो चल रहा है, यूनिट वाइज ही तो एक एक करके वो खत्म हो रहा है। तो आप उसको, आपको ध्यान नहीं होगा तो आपको देखेंगे फिर से, अगर नहीं आपको नहीं देंगे। ये तो कंप्लीट हो गया है, यूनिट एथिक्स, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो पढ़ाया तो था आपने, लेकिन फिर से कर देंगे, दोबारा कर देंगे। हाँ, दोबारा भेज देना सर, ठीक है। हाँ, दोबारा भेज देंगे, दोबारा पढ़ा भी देंगे, तो उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। तो ठीक है सर, पढ़ा लो सर। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूड परफॉर्मेंस फैक्टर में इसमें लीडरशिप आता है, एफिशिएंसी आता है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आता है, इसमें क्वालिटी आता है, रिलायबिलिटी आता है, स्टेबिलिटी आता है, इसमें क्रिएटिविटी आता है, टीम वर्क आता है, पीपल डेवलपमेंट आता है, स्पीड आता है, अडेप्टेबिलिटी आता है, इनोवेशन आता है। ऑर्गेनाइजेशनल रिवार्ड में इसमें आपको प्रमोशन जाता है, मैनेजमेंट प्रिक्विजिट जाता है, एग्जीक्यूटिव बोनसेस जाते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स इसमें जाता है, रिकॉग्निशन अवार्ड्स इसमें जाता है, कंटिन्यूइंग टेक्निकल प्रोग्राम इसमें जाता है, लेटरल असाइनमेंट इसमें जाता है, क्रॉस ट्रेनिंग इसमें जाता है, क्रिएटिव लैटिट्यूड इसमें जाता है, इमीडिएट केस बोनस इसमें जाता है, इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी इसमें जाता है, स्पेशल टेम्पोररी असाइनमेंट इसमें जाता है ना। तो सक्सेशन प्लान फॉर मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स रिटायरिंग ऑन 31, ये आपको दिया हुआ है। करंट डिजाइनेशन, मिस्टर ए वर्क्स मैनेजर, एज 55 है, कलर कोड ब्लू है। मिस्टर बी है, मार्केटिंग मैनेजर है, एज 54 है, कलर कोड रेड है ना। मिस्टर सी है, ये आपको सक्सेशन प्लान फॉर जनरल मैनेजर है। द टेबल विल हेल्प द मैनेजिंग डायरेक्टर टू आइडेंटिफाई ए सक्सेसर टू द जनरल मैनेजर, ये आपको टेबल हेल्प करेगा। कलर कोड क्या है? कलर कोड वो मिलते हैं ना सर्विस का कलर कोड। एम्प्लॉय भाई जो फाइनेंस का होगा उसको उसका कलर अलग होगा, मार्केटिंग का होगा उसका कलर कोड अलग होगा। ये ड्रेस कोड है ये। अच्छा, ड्रेस कोड है। हाँ, ड्रेस कोड है वो जो है। तो ये आपको कैरियर प्लानिंग से और सक्सेशन प्लानिंग में और कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटरडिपेंडेंट होता है वो। ऑल द 3 एसेंशियल ये आपको किया जाता है। L&T ड्रॉज ऑफ सक्सेशन प्लान, L&T जो है आपको सक्सेशन प्लान करता है। कंपनी हैज टेकन अप HR रजिस्टरिंग एक्सरसाइजेज फॉर सक्सेशन इंसाइडर टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी। हे ग्रुप इज वर्किंग ऑन डेवलपिंग ए सक्सेशन प्लान।
कंपटीशन फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैज हीट एलएनटी सब्सिडरी एलएनटी इंफोटेक हार्ड डिस्क, ये आपको करता है। तो ये आपको कैरियर एंड सक्सेशन प्लानिंग, ये आपको कैरियर एंड सक्सेशन प्लानिंग है। दूसरा, हाउ सक्सेशन प्लानिंग सिस्टम्स आर चेंजिंग, बिजनेस सिस्टम आपको बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल पिरामिड विथ मल्टीपल लेयर से आपको फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा है। डिजायर टू बी ए सीजन लीडर्स, उससे आपको वांट द सीजनिंग डेवलप्ड सूनर इन कैरियर्स, वो उसमें चेंज कर रहा है। स्टेबिलिटी से आपको फ्लेक्सिबिलिटी में चेंज कर रहा है ना। तो सक्सेशन सिस्टम्स ये आपको चेंज कर रहा है। ग्रूम ए बैकअप फॉर ईच पोजीशन, डेवलप द पूल। सर अटेंडेंस लगा दी है? अटेंडेंस लगा तो दिया आपको, ठीक है सर, अटेंडेंस लगा तो दिया, फिर से दोबारा ले लेंगे। ठीक है सर। Especially discipline in candidates, more broadly discipline in candidates, business unit autonomy, more centralized and integration of the system and information, siloed career growth, cross boundary fertilization to develop broader skills and perspectives, largely human resource driven, largely line driven, subjective and information criteria, personality, image of the oriented, strategic competency and model defines success, 360-degree feedback, टेक्निकल कंपिटेंस एक की फैक्टर, क्रॉस फंक्शनल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, क्विक लर्नर, मैनेज चेंज, टॉलरेट मार्जिनल परफॉर्मेंस, few positions for development requires removing managerial blockers, company directs and control carriers, individual sets career directions, control and confidence process, input from multiple source, more open planning and development process. Promises, no promises will be there. Focus on training and seminars. Sequential job assignment, provide primary development experience supplementary by the succession training. Take advantage of vacancies to promote candidate. Create assignment for development. Exchanges, trades, special projects. Promote from within when fully qualified. Promote when about. हाँ बोलिए। मतलब सर जब आप नोट्स भेजा करो ना सर, तो उसका ना टॉपिक का ना रीनेम कर दिया करो। जैसे जब आप पीडीएफ बनाते हो ना अडोब से, तो वहां पे ना उसका नाम लिखने का ऑप्शन आता है कि इस पीडीएफ का आप नाम क्या देते हो। तो जो भी टॉपिक है, जैसे अभी ट्रेनिंग का टॉपिक है, तो आप इसका नाम दे देना सर, कैरियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग टॉपिक का नाम, फिर इसमें इसका आपने पीडीएफ भेज दिया। जब भी हम पीडीएफ ओपन करेंगे सारा, तो हमारे पास पता रहेगा कि इस टॉपिक का पीडीएफ है ये। ऐसे में सारी पीडीएफ ओपन करना पड़ता है। ऐसे तो आपने 50 पीडीएफ भेज दी सर, लेकिन हमें अगर एक टॉपिक ढूंढना है पीडीएफ में, तो पता कैसे चलेगा? सबको ओपन कर करके ऊपर नीचे करते रहना पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो पीडीएफ फाइल में उसका नेमिंग करने के लिए? हाँ, नेमिंग करने के लिए सर। नेमिंग करना वो तो डिफिकल्ट है, क्योंकि वो पीडीएफ फाइल नहीं सर, डिफिकल्ट नहीं है। आप कैसे बनाते हो? फोन से बनाते हो, कैसे बनाते हो पीडीएफ, ये बताओ सर। फोन पे बनता है फिर? हाँ, तो फोन में जब आप अडोब फाइल, जब फोन में जब आप पीडीएफ बना लेते हो ना सर, वहीं तो ऊपर में उसका जो नाम लिखा हुआ आता है ना, अडोब 1 2 3 4 5 करके कुछ लिखा रहता है। उस पे क्लिक करोगे ना, वो आपके रीनेम का ऑप्शन दिखा देगा। उस पे आप उसको मिटा के नाम लिख दो टॉपिक का। आप बोलोगे तो मैं आपको वीडियो बना के ना व्हाट्सएप कर दूंगा किस तरह से रीनेम करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पीडीएफ पहले बना लो फिर उसका नेमिंग कर दो, है ना? हाँ, उसका नेमिंग आप कर सकते हैं, कोई भी नाम डाल दो पीडीएफ का। अच्छा, हाँ। उससे थोड़ा सा समझ में आपको भी आसानी रहेगी तो समझ में। मैं आपको बोलूंगा कोई एक टॉपिक का पीडीएफ भेजने के लिए, आप भी परेशान हो जाओगी। नहीं, मैं तो नेमिंग करके रखता हूँ, नेमिंग करके रखता हूँ यहाँ पर। तो मैं तो जैसे अभी पढ़ाया ना, तो वो तो फिर मैं बाद में नेमिंग कर देता हूँ उसका। तो हमारे पास तो सारे नेमिंग करके स्टोर रहते हैं। तो क्योंकि हाँ, तो वो नेमिंग करके भेजोगे ना, तो हमें भी फर्स्ट टाइम जब बनता है ना, तो फर्स्ट टाइम जब बनता है तो वो पीडीएफ फाइल बन जाता है, तो वो चला जाता है, पहले आपको चला जाता है। पहले स्टूडेंट आप उसमें रीनेम कर लिया करो। रीनेम कर लोगे ना, तो सर रीनेम करके ही वो सेव रहेगा आपके एडोब में। आपका फोन में जो एडोब एप्लीकेशन है, उसमें वो रीनेम करके सेव रहेगा। तो जब भी आप शेयर करोगे ना, वो रीनेम वाला ही शेयर होगा, वो ऐसा नहीं शेयर होगा नॉर्मल। जो नाम से आपने सेव किया वही शेयर होगा।
हाँ मैं समझ गया। वो जो है, नहीं हमारे पास तो नेमिंग करके ही सारे सेव हैं, नेमिंग करके ही सारे सेव हैं वो जो है। क्योंकि आप जो भेजते हो ना सर पीडीएफ, उसका आप जैसे अभी देखो आपने जो सिस्टम पे ओपन कर रखा है उसका नाम क्या आ रहा है, आप देखो अडोब स्कैन 21 अक्टूबर 2020 पीडीएफ आपने बनाई है 21 अक्टूबर को, नाम आ गया अडोब स्कैन। तो हाँ इसी तरह हाँ से सारे अडोब स्कैन नाम से आते हैं पीडीएफ आपके, तो हाँ, समझ में नहीं आता कि उसका पीडीएफ के अंदर है कौन सा हाँ टॉपिक। हाँ नेमिंग कर दें उसका, फिर ठीक रहेगा। हाँ नेम कर दोगे तो आपको भी इजी रहेगा सर समझने में, जब भी आप कभी भी ओपन करोगे पीडीएफ। तो फोन में नेमिंग हो जाता है? हाँ सर हो जाता है फोन में। हाँ तो फिर कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, फोन में नेमिंग हो जाता है तो उसमें पीडीएफ फाइल बनने के नेमिंग बाद। हो जाएगा और फोन में ये आपका सेव रहेगा वो नेम के साथ, तो जब भी शेयर करोगे व्हाट्सएप पे मेल पे वो हेलो आपका सर। नाम के साथ ही शेयर हाँ होगा। बोलिए, बताइए। भाई शुभम तेरी आवाज कट रही है, तेरी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, मैसेज कर दे तू क्या बोल रहा है। नहीं कुछ बोलना चाह रहा है क्या शुभम जी? हाँ सर ये कुछ बोलना चाह रहा है, आ कर रहा है, आवाज ही नहीं आ रही इसकी। आवाज आ रही सर? हाँ बोलिए। अटेंडेंस चलो सर। हाँ अटेंडेंस मैं आपको ले लेता हूँ, दोबारा अटेंडेंस ले लेता हूँ, जो जो आए हुए हैं उसका अटेंडेंस मैं आपको ले लेता हूँ। आकाश गुज्जर जी 102, दीपक जी 110, फैजन हाशमी जी 111, फ्रांसू जी 112, गुरदीप रावत जी 114, शुभम सिंह जी 143, कुंदन कुमार जी 163, पवन जी 127, योगेश जी 167, है ना। ये 9 पार्टिसिपेंट्स आपके आए हुए हैं। योगेश जी 167, पवन जी 127, कुंदन जी 163, शुभम सिंह जी 143, गुरदीप रावत जी 114, फ्रांसू जी 112, फैजान जी 111, दीपक जी 110, आकाश गुज्जर जी 102। अभी पार्टिसिपेंट घटते जा रहे हैं, आदमी कम है। तो अभी हम लोगों ने कैरियर प्लानिंग का, सक्सेशन प्लानिंग के उसी के बारे में अभी जो है हम लोगों ने स्टडी किया। दूसरा, कैरियर प्लानिंग टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। कैरियर गोल्स है, कैरियर पाथ है, कैरियर प्रोग्रेशन है, कैरियर काउंसलिंग है, मेंटरिंग है, कैरियर एंकर है, कैरियर डेवलपमेंट है, कैरियर मैनेजमेंट है, कैरियर आपका प्लेट्यू है। ये सारे आपको कैरियर प्लानिंग का आपका टर्मिनोलॉजी है। कैरियर गोल मीन्स द फ्यूचर पोजीशन वन स्ट्राइव्स टू रीच एज पार्ट ऑफ ए कैरियर। कैरियर पाथ द सीक्वेंशियल पैटर्न ऑफ जॉब्स दैट फॉर्म ए कैरियर। कैरियर प्रोग्रेशन मेकिंग प्रोग्रेस इन वंस कैरियर थ्रू प्रमोशंस। Career counseling, guiding and advising people on their possible career paths and what they must do to achieve promotions. Mentoring, the process wherein an executive or senior employee serves as a teacher, advisor, guide, friend, philosopher, and confidant to the new entrant. Career anchor, the basic drives that give the urge to take up a certain type of the career. These drives are as follows: technical competence, providing for professional satisfaction, continuous learning and uploading one's expertise in a technical functional area. Managerial competence, career providing opportunity for higher responsibility, decision making, control and influence. Security, ensuring security of career through compliance with the organization's prescription. Autonomy, career providing freedom of action and independence. Creativity, entrepreneurial and innovative opportunity. These are the terms of the career planning technology. Career development, the personal movement
an individual makes to achieve his career plan. Career management, the process of designing and implementing plans to enable the organization to satisfy the employee needs and allow individuals to achieve their career goals. Career plateau, it is a position from which someone is unlikely to move to a higher level of work responsibility. तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ द करियर प्लानिंग क्या है? These are the objectives of the career planning. To attract and retain the right type of person in the organization. To map out careers of the employees suitable to their ability and their willingness to be trained and developed for higher positions. To ensure better use of human resources through more satisfied and productive employees. To have a more stable workforce by reducing labor turnover and absenteeism. To increasingly utilize the managerial talent available at all levels within the organization. To improve employee morale and motivation by matching skills to job requirement and by providing opportunity for promotions. To ensure that promising persons get experience that will equip them to reach a responsibility for which they are able. To provide guidance and encourage employees to fulfill their potential. To achieve higher productivity and organizational development. These are the 9 objectives of the career planning. 9 objectives of the career planning. These are the 9 objectives of the career planning. To attract and retain the right type of person. Right type of the person को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे उसको रिटेन करना है, राइट टाइप ऑफ पर्सन को कंपनी में कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे उसको बुलाना है, ये आपको मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द करियर प्लानिंग इज देयर, है ना. मैप आउट द कैरियर ऑफ द एम्प्लॉय का कैरियर बनाना है अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी ऑफ देयर एबिलिटी एंड देयर विलिंगनेस, है ना, टू बी ट्रेंड एंड डेवलप फॉर हाईएस्ट पोजीशन. हायर पोजीशन में कैसे वो डेवलप करे, है ना, उसको सुटेबल बनाना है किसी एबिलिटी को करने के लिए, विलिंगनेस को ट्रेन करने के लिए, डेवलप फॉर द हायर पोजीशन. टू इंश्योर बेटर यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू मोर सेटिस्फाइड एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉय. बेटर यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज करना है थ्रू द मोर सेटिस्फाइड एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉय. प्रोडक्टिव एम्प्लॉय को रखना है, उसको यूज करना है और सेटिस्फाइड करना है. तो ये कैरियर प्लानिंग का गोल है. टू हैव मोर स्टेबल वर्कफोर्स बाय रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटीजम, है ना. टू हैव ए मोर स्टेबल वर्कफोर्स बाय रिड्यूसिंग द लेबर टर्नओवर को घटा के, एब्सेंटीजम को घटा करके आपको स्टेबल वर्कफोर्स रखना है. टू इंक्रीजिंगली यूटिलाइज द मैनेजरियल टैलेंट अवेलेबल एट ऑल लेवल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. Utilize the managerial talent available at all levels within the organization. To improve employee morale and motivation by matching skills to job requirement. To improve the employee morale and motivation. Employee का moral बढ़ाना है, motivation बढ़ाना है by matching skills to do the requirement and by providing opportunity for promotion. To ensure that promising persons get experience that will equip them to reach responsibility for which they are able. Promising persons get experiences they will equip. To provide guidance and encourage employee to fulfill their potential. To provide the guidance and encourage employee to fulfill their potentials. To achieve higher productivity and organizational development. आपको हायर प्रोडक्टिविटी जानने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जानने के लिए ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैरियर प्लानिंग, ये आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैरियर प्लानिंग था. ये आपको कैरियर प्लानिंग का आपको टर्मिनोलॉजी है. कैरियर गोल, कैरियर पाथ, कैरियर प्रोग्रेशन, कैरियर काउंसलिंग, मेंटरिंग, कैरियर एंकर, कैरियर डेवलपमेंट, कैरियर मैनेजमेंट, कैरियर प्लेटिव, है ना. कैरियर गोल्स का मतलब है द फ्यूचर पोजीशंस. रोशन जी अभी इंटर कर रहे हैं, उसका अटेंडेंस बना देते हैं. तो कैरियर पाथ, द सिक्वेंशियल पैटर्न ऑफ जॉब्स दैट फॉर्म ए कैरियर. कैरियर प्रोग्रेशन, मेकिंग प्रोग्रेस इन वंस कैरियर थ्रू प्रमोशंस. Career counseling, guiding and advising people on their possible career paths and what they must do achieve promotions. Mentoring का मतलब है the
the process wherein an executive or senior employee serves as a teacher, advisor, guide, friend, philosopher, and confidant to a new entrant. Career anchor, the basic drives that give the urge to take up certain type of career. These drives are as follow: technical competence, managerial competence, security, autonomy, and creativity. Providing for professional satisfaction, continuous learning, updating one's expertise in a technical or functional area. Career providing opportunity for higher responsibility, decision making, control, and influence. Ensuring security of career through compliance with organization's prescription. Career providing freedom of action and independence. Career development, the personal movement an individual makes to achieve his career plan. Career management, the process of designing and implementing plans to enable the organization to satisfy employee needs and allow individual to achieve their career goals. Career plateau, it is a position from which someone is unlikely to move to a higher level of work responsibility. This is the career planning terminology. These are the how succession planning systems are changing from succession planning to the कैसे कैसे सक्सेशन प्लानिंग का फ्रॉम से टू में चेंज हो रहा है, इसके बारे में आपको दिया हुआ है. ऑर्गेनाइजेशनल पिरामिड्स विथ मल्टीपल लेयर्स आर चेंजिंग टू द फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर. Desired for the seasoned leaders that are changing to the what the seasoning developed sooner in careers. Stability that is changing into flexibility with faster market responsiveness. Groom a backup for each position. Develop pools of broadly qualified candidates. Have position pools. Specialty, discipline in candidates. More broadly disciplined in candidates. Business unit autonomy will be changed to the more centralization and integration of system and information. Siloed career growth will be changed into the cross-boundary fertilization to develop broader skills and perspective. Largely human resource driven, largely line driven. This can be changed. Subjective and informal criteria is the strategic competency and models define success. Technical competence as a key factor. That will be the cross-functional management capability, quick learner, and tolerate managerial performance. That is the fewer position for development requires removing marginal blockers. Company directs and controls careers. That will be individual set career direction. Control and confidential process. That will be the input from the multiple sources. More open planning and development process. Promises will be no promises. ये को कैसे आपको चेंज होगा, सक्सेशन प्लानिंग का कैसे चेंज हो रहा है उसके बारे में बता रहा है. फोकस ऑन ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स. प्राइमरी डेवलपमेंट व्हीकल, सीक्वेंशियल जॉब असाइनमेंट प्रोवाइड प्राइमरी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस सप्लीमेंटेड बाय द स्पेसिफिक ट्रेनिंग. टेक एडवांटेज टू ऑफ वैकेंसीज टू प्रमोट कैंडिडेट्स. Create assignments for development, exchange, trade, and special projects. Promote from within when fully qualified. Promote when about 70% qualified. Hire less experienced talent at entry level. L&T has drawn up the succession plan. L&T कंपनी जो है वो सक्सेशन प्लान को वो जो है वो प्रिफर करती है. Company has taken up HR restructuring exercises for succession insider to be given top priority. है ना. For succession जो है जो आपको insider को ही top priority दिया जाता है, बाहर वाले को जो है वो आपको लाया नहीं आता है. Has group is working on developing a succession plan. आपको वहां पर एक ग्रुप रखा हुआ है जो आपको सक्सेशन प्लान के लिए डेवलप करता है. L&T कंपनी में कंपटीशन फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री has L&T subsidiary and L&T's Infotech and Hardset. तो ये आपको हो रहा है. Career planning, manpower planning and succession planning are complementary and interdependent. All the three essentials for the effective utilization of organizational human resource. ये आपको दिया हुआ है. Succession plan का आपको दिया हुआ है कि कैसे कैसे जो है आपको characteristics of the 4 career path आपको दिया हुआ है. 4 कैरियर पाथ का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिया हुआ है. लीनियर का, एक्सपर्ट का, स्पाइरल का और ट्रांजिस्टरी का.
डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इसमें अपवर्ड होगा, एक्सपर्ट में लिटिल मूवमेंट होगा, और स्पाइरल में लेटरल होगा, ट्रांजिस्टरी में लेटरल होगा। ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन वन फील्ड इसमें वेरिएबल है, इसमें लाइफ टाइम है, इसमें 7 to 10 ईयर्स है, इसमें 3 to 5 ईयर्स है। इंक्यूबमेंट मोटिव्स, पावर अचीवमेंट है ना, एक्सपर्टीज, सिक्योरिटी, पर्सनल ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी, वेराइटी, इंडिपेंडेंस, ये इसमें आपको ज्यादा होगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसमें टॉल पिरामिड है, इसमें फ्लैट है, इसमें मैट्रिक्स है, उसमें लूज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू परफॉर्मेंस फैक्टर इसमें लीडरशिप है, लीडरशिप इफिशिएंसी, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, इसमें क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी है, क्रिएटिविटी, टीम वर्क है, पीपल डेवलपमेंट है, स्पीड, एडेप्टेबिलिटी, इनोवेशन है इसमें। तो ऑर्गेनाइजेशनल रिवार्ड्स इसमें प्रमोशंस है, मैनेजमेंट प्रीक्विजिट है, एक्सिक्यूटिव